اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور یہ بہت بابرکت خیر والا مہینہ ہے۔ اب ہم لوگوں کو نظر اس بات پر ڈالنی ہے، ہم ایمان والے، ہم مسلمان، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے اس مہینے سے، ان کے فضلوں سے، ان کے انعام و اکرام سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہم سب پر منحصر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر چیز کی فضیلت کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہر چیز کا جو اجر ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، وہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں رمضان کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں کہ ان الصیام لی واجزی بہ۔ کیا کہ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان، یہ روزہ جو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہوں۔ کیا مطلب کہ ہم لوگ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی عبادات کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو ثواب دیں گے، نیکیاں دیں گے، جو کل قیامت کے دن ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائے گی، جنت دلائے گی۔ لیکن رمضان کے جو روزے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جزا بھی، کہ اس کا اجر میں خود ہوں۔ سارا چیز کا جو جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جنت ان کے ہاتھ میں ہے، نیکیاں دینا ان کے ہاتھ میں ہے، سب سے اچھا بدلہ دینا جس کو جزاک اللہ خیر کہا گیا ہے، سب سے اچھا بدلہ دینے والی ذات اللہ ہے۔ اور صرف ایک رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے وہ چیز ہماری ہو جائے، چیز نہیں، سارے کائنات کا مالک یعنی رب کائنات ہمارا ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے اسے فضیلت۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھنے والوں کی فضیلت بتائی گئی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ جو رمضان مبارک کی جو اہمیت ہے، اگر کوئی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے شیطانی نقش قدم پر چلتے ہی رہتا ہے، جیسے انہوں نے 11 مہینے گزارے اسی طرح اس مہینے کو بھی گزار دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے بددعا دلائی کہ وہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو، اس مہینے کو گزارے، اس مہینے میں اس کی سانس چل رہی ہو اور اس کے عبادات کر کے، اس کے انعام و اکرام سے، ان کے فضائل سے، ان کے دیے ہوئے انعام سے اپنے آپ کو اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بتا رہے۔ تو بتائیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے ساری دنیا کو بنایا گیا، جس کے بدولت ہم لوگ اس دنیا میں ہیں، جس کے بدولت زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، ان کی زبان سے اس امت کے بارے میں کیا نکل رہی ہے؟ بددعا نکل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہم امتیوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے میں رہیں گے جب تک کہ ایک امتی کی بخشش نہ ہو جائے۔ تو بتائیے وہ نبی
जो हमारे लिए आखिरी दम तक, आखिरी सारा मैदान हशर अपने अपने कामों में लगा होगा, अपने अपने ठिकाने की तलाश में होगा, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े होंगे हम उम्मतियों के लिए। लेकिन आखिर कितना, यानी कितना समझिए कि ये पूरा मरहला है, कितना ज्यादा खतरनाक मरहला है कि वही हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बद्दुआ देने पर, हम उम्मतियों के ऐसे गलतियों की वजह से हम हमारे ऊपर यानी लानत भेजने का तैयार है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए हमें इस बात को बखूबी समझना होगा कि इस महीने की फजीलत से, इस महीने के इनाम इकराम से, बताइए जैसे तरावीह जैसी अहम चीज जिसके बारे में कहा जाता है 1,70,000 हर सजदे में नेकियां मिलती है। ये तो बज़ाहिर हम लोगों को देखने में लगता है कि 1,70,000 है, लेकिन अगर सही दिल से अल्लाह की इताअत करते हुए अगर हम उस चीज को अंजाम दे रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, अल्लाह ताला इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा कर दे सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये यानी हम लोगों के अंदर सुस्ती आती कैसे है? हम लोगों के अंदर ये सुस्ती आई इस वजह से है कि जिस तरह कोई गाड़ी चला रहा हो, कोई गाड़ी है, चलते चलते अगर कोई हादसा आ जाए या कोई ऐसा रोकने वाला जगह आ जाए, उसको ब्रेक लेने के बाद ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट उसी जगह पर रुक जाता है, वो घिसते घिसते थोड़ी आगे चली जाती है। उसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब का ये नफ्स जो ये शैतान तो इस महीने में कैद कर दिया जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा शैतान जो है हमारा नफ्स, वो हमारे साथ इस महीने में भी रहता है। वो क्या करता है कि जिस तरह हमने 11 महीने ऐसे ही खाबे गफलत में गुजार दिए, अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ कर जिंदगी गुजारने में गुजार दिए, अल्लाह ताला के अहकाम को पसे पुष्ट जानकर हमने गुजार दिए, उसी तरह जब हम ये इस महीने के बाद अपने नफ्स को रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, तो वो रफ्ता रफ्ता इस महीने भी आधा तक पहुंच जाता है कि वही नफ्स हमारी वही का यानी शेड्यूल रहता है, उसी तरह का नज़म हमारी जिंदगी का रहता है जैसे 11 महीने में होता है, इस महीने में भी हमारा उसी तरह हो जाता है। ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं लेकिन घिसते घिसते यहाँ तक आ जाती है। बचे 15 दिन में हम चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि इस महीने के इनाम और इकराम से फायदा उठाए, जब तक हमारे अंदर थोड़ी कमजोरी आने लगती है, रोजे रहने की वजह से बोले या फिर जिस तरह से भी हो, तो हम उसमें भी यानी गफलत में डाल देते हैं उस चीज को। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये बात यानी बद्दुआ वाली बात आती है, तो उसमें हम लोगों को अपने अंदर मुहासबा करना होगा, अपने नफ्स को टटोलना होगा कि हम आखिर इस बद्दुआ से कैसे बच सकते हैं। बचने का तरीका यही है कि जो सबसे बड़ी इबादत इस महीने में है रमजान के रोजे, उसको ना छोड़ना। उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स रमजान के रोजे नहीं रखता है, कह रहे हैं कि क़यामत यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो बहुत सारे जब रास्ते से जिब्रील इस्लाम के सामने गुजर रहे थे कि तरह तरह के सिचुएशन उनके सामने आया, यानी हालात उनके सामने आया। यानी एक शख्स को देखा कि वो नाखून से बड़े बड़े नाखून से खुद अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने बदन को नोच रहे हैं, तो बताया गया कि यानी क्या करता है, चुगलखोरी करता था। इसी तरह देखा कि एक शख्स आग में जल रहा है, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर इसको आग में क्यों जलाया जा रहा है, तो जिब्रील नबी ने बताया कि ये आपके उम्मत के बेनमाजी लोग हैं। उसी तरह एक शख्स को देखा कि बिल्कुल उल्टा करना हुआ है ना, सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ और आग नीचे से जल रहा है, जैसे घंटी उबलती है उसी तरह की सजा हो रही है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील अमीन आखिर इसके साथ क्यों ऐसा मामला हो रहा है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन अफसोस की हालत में यानी अफसोस करते हुए किसी बात को जैसे कहा जाता है, उसने कहा कि जब ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मत के वो शख्स हैं जो रमजान मुबारक के रोजे को दरकिनार करके उनको छोड़ दिया करता था, रमजान मुबारक के रोजे नहीं रखा करता। तो मेरे मतलब बुजुर्गों बताएं कि आग नीचे से उबल रही हो, हमारा दिमाग उसी तरफ हो और ये नीचे से कितना खतरनाक आग होगा। आप तो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इस जहन्नम की आग जो है यहाँ से 70 गुना 70% ज्यादा खतरनाक है।
وہ 70 यहाँ के आग इतना खतरनाक होता है कि एक उंगली जब उनके सामने रखी जाए तो वो जला कर राख कर देती है। बताइए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यहाँ से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जो जहन्नम की आग है उसके सामने उबालने की तरह हमको सामने रखाया जाएगा, तो बताइए उस वक्त मेरा क्या हशर नशर होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रमजान के रोजे मत छोड़ना, रमजान के रोजे मत छोड़ना। इनके इबादत में ये जो इस महीने की जो भी तरावी, रोजे, जो भी अज़कार, जो भी नवाफिल है हम लोगों को करनी है, इसमें कर जाना। और आखिरी बात ये कि जो 5 दिन के बाद हमें एहतिकाफ का यानी शब-ए कदर का मरहला आएगा, यानी आखिरी जो अशरा होगा उसमें यानी 20 तारीख के सूरज तुलू होने के बाद जो रखी जाती है रमजान मुबारक के, तो 21वीं तारीख को यहाँ उस वक्त से जो यानी आखिरी यानी चांद रात तक के जो एहतिकाफ होता है उसकी भी बहुत ज्यादा फजीलत आती है। और कहा जाता है कि ये एहतिकाफ इसलिए कहा गया कि इस महीने में जो सबसे काबिल कद्र, सबसे ज्यादा अजमत वाली एक जो रात आती है शब-ए कदर, जिसको हम लोग कहते हैं शब-ए कदर यानी अजमत वाली रात, उसको पाने के लिए एहतिकाफ किया जाता है। कहा जाता है कि कोई शख्स यानी 1 मिनट का भी एहतिकाफ अल्लाह के लिए कर ले तो ये बहुत बड़ी फजीलत वाली होती है। और हम 10 दिन का एहतिकाफ रमजान मुबारक के आखिरी मरहले में हम कर लें तो इससे कितना बड़ा इनाम और इकराम हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि इस महीने में 3 अशरे होते हैं, क्या? रहमत का, मग़फ़िरत का, आग से खुलासी का। हम लोग तो इतने नेक बंदे हैं नहीं कि शुरू ही रमजान से हमारे ऊपर रहमत बरसे। अगर उससे थोड़े से कम है यानी थोड़े नेकी वाले हैं तो अल्लाह ताला का इनाम इकराम होगा कि 11 रमजान से लेकर 20 रमजान से या 11 रमजान से लेकर हमारे ऊपर रहमत बरसना चालू हो जाएगा। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, हमारे गुनाहों को माफ करना, अल्लाह की हमारा रोजा रखना इतना पसंद आएगा कि 11 तारीख के बाद हमारे इबादत कबूल होंगे, हमारे गुनाह मिटने चालू होंगे। अगर सबसे ज्यादा गुनहगार रहा जैसे हम हैं कि हम जैसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अपॉर्चुनिटी रखा, कितना बड़ा सुनहरा मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि हम अपने गुनाहों से कैसे पाक हो सकते हैं। उसके लिए हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी अशरा दिया जिसको आग से खुलासी कहा जाता है। कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कितना मुँह बड़ा गुनाह हो, गुनहगार हो, पूरी दुनिया गुनाह करके भर दिया हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर सही दिल से अल्लाह के सामने माफी मांगी जाए, हम चाहें कि अल्लाह ताला हमें माफ करे तो अल्लाह ताला हमें हमारे लिए तो बहाना चाहते हैं, तो उसी लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी अशरा हमारे लिए रखा। और ये आखिरी अशरे में एहतिकाफ का मसला ये है ताकि शब-ए कदर जैसी अजमत वाली रात पाने, उसके वजह से हमारे सारे गुनाह मिट जाए, नेकियां ही नेकियां हमारे पास जमा हो। और ये फर्ज़ किफाया है यानी पूरे मोहल्ले वाले के ऊपर फर्ज है, लेकिन कोई एक शख्स भी यानी इस काम को अंजाम दे लेता है तो पूरे मोहल्ले वाले की तरफ से यानी अदा हो जाता है। तो ये सिर्फ हम लोगों को ये नहीं समझना है कि हमें फर्ज़े किफाया समझकर कि कोई हम में से हमारे मोहल्ले में से है ऐसा को हम लोगों को ये नहीं समझना है कि पूरे मोहल्ले में से कोई एक शख्स कर ले तो हमारे ऊपर से अदा हो जाएगा। ये हम लोगों को नहीं समझना है। हम लोगों को समझना ये है कि फजीलत वाली रात, शब-ए कदर की रात और एहतिकाफ जैसी अहम चीज जिससे हम अपने गुनाहों से खुलासे हो सकते हैं। हम एक नेक बंदा, एक जिस तरह अल्लाह ताला इस तरह इंसान को पाक कर देता है उस रात के बाद से, यानी चांद के चांद होने से पहले कि जिस तरह कोई शख्स अभी माँ के गोद से या माँ की गोद से पैदा हुआ हो, उस तरह पाक को साफ अल्लाह ताला कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहें कि हम लोग में से कोशिश के साथ और शौक के साथ नौजवान लोग हिस्सा लें, इसमें नौजवान लोग हिस्सा लें और यानी बल्कि तमाम लोग इसमें कोशिश करें कि हम भी इस यानी इनाम और इकराम में क्या करना है हिस्सा लेंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हमने दुनिया के लिए, लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, भी बच्चों के लिए पूरे यानी 11 महीने
भाई 11 महीने 20 दिन तो ऐसे ही गुजार देते हैं, तो 10 दिन हम लोग कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ हो, हमारा सारी दुनिया से हमारा रिश्ता कट के हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ जुड़ जाए, हमारा लोग अल्लाह के सामने हो जाए, अल्लाह से जुड़ जाए। तो उसके लिए हम लोग तमाम लोग कोशिश करें कि हम भी सब लोग मिलकर यानी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएंगे। 10 दिन का हम लोग एहतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि उसके जरिए हम शब कदर जैसी अहम इबादत की रात में यानी अल्लाह ताला हम लोगों को नसीब करे शब कदर जैसी रात। तो इंशाअल्लाह तमाम लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे कि एहतिकाफ में हिस्सा लें इंशाअल्लाह। चलिए अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। और सदका फित्र उसका ऐलान आया कि कम से कम 60 रुपए निकालना है ना, कम से कम 60 रुपए। और रही बात ज़कात की बात, तो साहिब निसाब लोग उसका यानी क्या कहता है मुहासबा करके उसका हिसाब करके उसमें से 2.5% अपने माल में से ज़कात निकालें, ताकि उसके जरिए हमारे समाज में जो नादिर लोग हैं या क्या कहता है जो जिसके पास इतनी यानी उसत नहीं है कि सही तौर पर हम ईद के कपड़े ले गए, सही तौर पर हमारा रमजान गुजर सके, उसके लिए हम अभी से फिक्र लें। 15 दिन तो गुजर गए, कम से कम अभी से फिक्र लेंगे ताकि हमारे ज़कात के पैसे से किसी गरीब के यानी घर रोशन हो जाए, उसकी खुशियाँ लौट आए। ज़कात इसीलिए कहा गया है, सबसे पहला जो मैंने आयत पढ़ी कुरान करीम के, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, खुद मिन अमवालिहिम कि अपने माल में से निकालो, सदका निकालो, व तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, जिसकी वजह से तुम्हारे माल क्या हो जाए, पाक साफ हो जाए, तुम्हारे लिए खुशगवार हो जाए। व तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उसके बाद लास्ट में आखिर बात में क्या कहा अल्लाह ताला ने कि वसल्ली अलैहिम, वसल्ली अलैहिम, ये हुक्म है, ये अम्र का सेगा है अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। हम लोग तो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के ईमान वालों को ये कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, सल्लु अलैहि, किस पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहिम व सल्लिमू तस्लीमा, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, सलाम भेजो, जैसा कि यानी अल्लाह ताला खुद अपने बारे में कह रहा है कि जैसा कि मैं अपने नबी पर सलाम भेजता हूँ। बताइए हम तमाम ईमान वाले और अल्लाह तबारक व तआला जिस पर सलाम भेज रहे हैं उसके यानी ज़कात निकालने वाले के बारे में, यानी अपने साथ साथ उम्मत की फिक्र करने वालों के बारे में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। किसको? यहाँ किसी ईमान वाले को नहीं, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। यहाँ कहा इन्ना सलातका सकनुल लहुम, कि यानी अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं उन लोगों पर सलाम भेजने के लिए जो अपने माल में से सदका निकाल कर अपने माल में से दूसरों की फिक्र करता है, उस पर खर्च करता है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को नवाजा है, अपने साथ साथ लोगों की ये भी फिक्र करता है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क्या कि आप उन लोगों पर सलाम भेजिए। क्यों? कि इन्ना सलातका सकनुल लहुम, ये आपका सलाम भेजना, ये आपका दरूद भेजना उनके लिए सुकून का बाइस बनेगा, उनके लिए रहमत का बाइस बनेगा। क्या मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अगर हम अपने माल में से अपने साथ साथ लोगों की फिक्र करते हैं, उसका 2.5% कम से कम निकाल कर हम लोगों गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों को अता करते हैं, देते हैं खुश दिली के साथ, तो क्या होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम, उनकी खुश दिली हमारे पर नाज़िल होगी और उसका यानी फायदा क्या होगा कि हमारी जिंदगी में सुकून होगा, हमारा माल पाक साफ होगा, खुशगवार होगा, बाबरकत होगा, हमारे लिए नफा बख्श होगा, फायदा मंद होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों अभी निकालें ज़कात, अभी से निकालें और ज़कात का मसला इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में और वाज़ेह तौर पर किया जाएगा। अभी से निकालें ताकि कोई जो जरूरतमंद आने वाले हैं वो आपके दर से आपके घर से वापसी ना जाए, है ना, उनका दिल ना दुखे, उनका वक्त बर्बाद ना होगा। खुश दिली के साथ जब आपके पास से ले जाएंगे तो आपका भी फायदा होगा, उनका भी दिल
خوشگوار ہوگا، وہ صبح ہنستے مسکراتے آپ کے در سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اکرام ہمارے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔